Morning students, welcome back in the maths class for standard 7. I am your maths teacher, so without wasting further time, let's get started. So here we are on exercise 6.5, right? We are on exercise 6.5, which is the last exercise of the chapter number 6. Here the whole exercise 6.5 is based on Pythagoras theorem. You know Pythagoras theorem I already explained in part 1, chapter number 6, part 1, which is introduction part. In introduction part I already explained the Pythagoras theorem. Still I again repeat, Pythagoras theorem applies on the right angle triangle, and on the right angle triangle, suppose there is a triangle ABC. So on the other side of right angle, this is the right angle at a B. So this is the right angle. Now opposite side of right angle is known as a hypotenuse. This is the base and this is the altitude or height, whatever you say, altitude and height. This is the base and this is the hypotenuse. In right angle triangle, hypotenuse is the longest side in all the three sides. जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में. सो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यू नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर विच इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यू कैन राइट लाइक दिस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. दोनों एक ही चीज़ है, दोनों साइड का स्क्वायर तीसरी साइड का इक्वल होता है. यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर. जबकि नॉर्मल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होता है. यहाँ पर दो साइड का स्क्वायर का एडिशन तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. तीसरी साइड मतलब हाइपोटेनियस के बराबर होता है. सो हियर now in the question number 1, PQR is a triangle, right angle at a P. So एक triangle बनाओ, right angle triangle. Now right angle at a P. So right angle कहाँ होगा, P पे. So जहाँ पर right angle बना है उसको नाम दो P. Now PQR है, so P यहाँ पर आएगा Q, यहाँ पर आएगा R. So there is a PQR triangle is there, right angle at a P. If PQ is given 10 cm, PQ कहाँ दिया है, 10 cm दिया है वो है. Now PR is equal to 24 cm, so PR here 24 cm. Now find QR. QR means the hypotenuse we have to find out. अब hypotenuse हमारे पास नहीं है, उसको क्या करना है, find out करना है. So for that we have Pythagoras formula. So apply the Pythagoras formula by Pythagoras theorem. You know that PR square plus PQ square is equal to what, RQ square or QR square. So now PR is what, 24 cm, so 24 square plus PQ is what, PQ is 10 cm, so 10 square is equal to QR square. Now QR square, अब 24 का स्क्वायर करो, क्या आता है 24 का स्क्वायर, दैट फाइंड आउट 24 मल्टीप्लाई 24. सो हियर 4 4 जा 16 goes with 4 2 जा 8 plus 1 9 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 6 17, so 1 carries, so 576 is the square of 24 plus 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100. 10 multiply 10 is 100. So here your answer is 600. This is QR square. So here addition of 576 plus 100, which is 676, is equal to QR square. Now this is the QR square. We want QR only. हमको चाहिए क्या, QR चाहिए. यहाँ पर तो हमको मिला
r square. So we have to remove the square. If you want to remove square from the one side, you have to take square root of the other side. So for removing the square, you have to take square root like this for the both side. 6676. Now so if you remove, so यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो अब बचेगा क्यू आर. लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 676, स्क्वायर रूट ऑफ 676 क्या होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है, नहीं आता तो आई विल शो यू हाउ टू. वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676. नाउ ये कैसे पता चलेगा किसका स्क्वायर है 676, नहीं पता तो क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करेंगे. लेकिन डिवीज़न मेथड थोड़ा डिफरेंट है. क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट है तो लास्ट 2 डिजिट को पेयर बनाओ और थर्ड डिजिट को सिंगल रखो. अगर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट को 2-2 की पेयर बनाओ. यहाँ पर 2-2 की पेयर नहीं बनेगी, यहाँ पर 3 डिजिट है तो एक 2 की पेयर बनेगी और एक सिंगल रहेगा. सो नाउ फ्रॉम द सिंगल क्या करना है, 6 इज हूँ स्क्वायर, 6 किसका स्क्वायर है, उसकी नियर बाय वैल्यू जो भी है वहाँ तक जाओ. 2 2 जा 4, सपोज 1 1 जा क्या होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. सो 9 इज ग्रेटर देन 6, सो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 यूज़ करना पड़ेगा. सो 2 2 जा 4. नाउ 2 ऊपर ऐड किया तो यहाँ पर भी ऐड कर दो उसके नीचे. सो अब क्या हो गया, 2 + 2 4 हो गया और यहाँ पर माइनस करो, सब्ट्रैक्ट 6 - 4 इज व्हाट 2. अभी ये हमारा पूरा पेयर है, पूरा पेयर नीचे आएगा 276. अभी हमारे पास यहाँ पर डिवीज़न में अभी बचा है 4. अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब उसकी नीचे की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे. लेकिन उससे भी डिवाइड नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे, 4 के साथ, सपोज 4 वी गॉट 4. नाउ 4 के साथ और क्या रखेंगे तो हमारे पास 276 आंसर आएगा. सपोज लेट्स आई पुट हियर 42, 2 रखूँगा मैं. सो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर 3 रखता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ जो भी रखता हूँ उससे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स पुट 3 फर्स्ट, लेट्स पुट 2 फर्स्ट. सी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. सो 42 2 जा 82 84. दैट इज़ नॉट प्रॉपर, हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर. सो और फर्दर वी हैव टू गो. 4 विथ आई विल टेक 4 विथ 5. लेट्स टेक 5. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 + 2 20, 2 2 5. स्टिल वी आर फार फ्रॉम 276. तो अभी ये भी नहीं चलेगा. अभी 4 के साथ मैं लूँगा 6. सो 6 से मल्टीप्लाई करो. सो हियर 6 6 जा 36, 3 goes up, 4 6 जा 24, 25 26 and 27. So yes, 276 is got. सो 46 यहाँ पर मैं रखूँगा 6 और 46 6 जा आएगा 276 0 0 0. सो हमारा स्क्वायर रूट क्या आया, जो कि हमारा ऊपर है, विच इज़ 26. सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ 676 is 26. So that's how you can find out the square root of any number or any 3 digit 4 digit number. So this is the answer. Now moving on our next question, question number 2. In ABC is a triangle. ABC is what? Triangle. Right angle at C. अभी यहाँ पर क्लियरली बोला है राइट एंगल कहाँ पर है, C पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करो. वन राइट एंगल ट्राइंगल like this. Right angle at C. So C should be here. Now ABC. So here C, then here A, here B. So A, B and C as a right angle. Now the values are given. AB is equal to 25. So here hypotenuse is already given 25 centimeter. Now here 26 is a centimeter. So remember the unit also. AC is equal to what? AC is equal to 7 meter. 7 centimeter, not a meter. So we have to find out BC, which is the altitude or which is the height of the triangle. Now we have to find out BC. Again use the Pythagoras theorem, which is hypotenuse square, which is BA square is equal to other two sides square, which is CA square plus BC square.
अब यहाँ पर लेट्स सी बी ए का हमारे पास वैल्यू है, यस वी हैव द वैल्यू ऑफ बी ए विच इज़ 25 होल स्क्वायर. नाउ सी ए का वैल्यू हमारे पास है, यस वी हैव द वैल्यू ऑफ सी ए विच इज़ 7 स्क्वायर. वी हैव द वैल्यू ऑफ बी सी, नो वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ बी सी, सो बी सी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट. अब क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे ऑन दी अदर साइड, बी सी को रखेंगे एक साइड. सो बी सी इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर, ये प्लस 7 स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो माइनस होल 7 स्क्वायर. और आप स्क्वायर करने के बाद भी उसको उस साइड ले जा सकते हो, डजेंट मैटर. नाउ बी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 25 स्क्वायर. 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 मल्टीप्लाई 25, 5 5 ज़ा 25, 2 goes up, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, अगेन 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गोज अप, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 विच इज़ 5, 5 2 6 25, 25 स्क्वायर इज व्हाट 625, 7 स्क्वायर इज व्हाट 49. 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 ज़ा 49, सो 7 7 ज़ा 49. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 49 फ्रॉम द 625. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 10, here goes 1, so 10 minus 9 which is 1, so here it is 6, here 11 minus 4 which is 7, so 576. 576 is your answer, but this is also not your final answer, this is only the square of this answer. So BC square हमको मिला है 576, बस हमको चाहिए क्या BC लाने के लिए हमको फिर से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन द डिवीजन मेथड, यूज द डिवीजन मेथड प्रॉपरली. 3 डिजिट है 5 7 एंड 6, मेक द पेयर. सो 2 हियर 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ 1, 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 4, 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ 9. So obviously you have to go with the 2, 2 2 ज़ा 4, 1 left. Now this is the pair, so put down 176 totally down. Now you put 2 upside, so you have to add 2 2 ज़ा 4, 2 plus 2 which is 4. Now again what you have to do, you have to multiply 4 with the add something, so like this 4 and 2, 4 with the 3, let's 43, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. Still we are far away, 129 and 176, so I have to take another 46 multiply 6, so 6 6 ज़ा 36, 6 here 3 goes up, 6 4 ज़ा 24, 25 26 and 27, so here it is 27. Only 176, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे अब 4 से ट्राई करते हैं. चलो 4 4 ज़ा 16, 1 गोज अप, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, सो 176 आ गया. मतलब यहाँ पर 44 हम लेंगे, 44 4 ज़ा 176, सो ये हो गया हमारा आंसर. सो 24 इज़ आवर स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमारा आया, सो 24. सो BC इज इक्वल टू व्हाट 24. Easy, same way we can do the another sums. So here is the question number 1 and question number 2. Now moving on our next question, question number 3. Okay students, so moving on our next question, question number 3. See now what question number 3 says. A 15-meter long ladder reaches a window 12-meter height from the ground on placing it against a wall at a distance from A. Find the distance of foot of the ladder from the wall. मतलब यहाँ पर एक विंडो है घर की और ग्राउंड से एक लेडर टिकाया हुआ है घर पर, घर की दीवार पर, जो कि ऐसी है, उस दीवार पर टिकाया हुआ है. सो फ्रॉम द ग्राउंड टू विंडो का हाइट कितना है 12 मीटर, और जहाँ से लेडर रखा हुआ है, लेडर का फुट है, वहाँ से वॉल का डिस्टेंस हमको मेज़रमेंट में नहीं दिया, ओनली ए दिया हुआ है. सो टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, और जो कि डायगोनल बन रहा है 15 मीटर की लेडर है हमारी. लेडर कितने मीटर की है 15 मीटर की लेडर है. सो यू कैन सी दैट फिगर बिकम्स लाइक द राइट एंगल, राइट, इट लुक लाइक अ राइट एंगल. सो राइट एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल में
हाइपोटेनियस हमारा हो गया लेडर, वॉल हो गए हमारी वन साइड एंड दिस वन इज बिकम द बेस। सब हमको फाइंड आउट करना है ए। सो ए फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर विच इज 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो हियर 15 square is what? Do here 15 multiply 15 which is 5 5s are 25, 2 goes up, 5 1s are 5 plus 2 7, now 0 and 15, 15 1s are 15. So 5 12 325. 15 square is what? 15 square is 325 is equal to a square as it is plus 12 square is what? 12 multiplied 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, again 0, 12, 4, 2 plus 2 is 4, 144. So it is 144. Again I will cross check the 15 square which is doubtable. So 15 multiply 15, 5 5s are 25, 5 goes up, 5 1s are 5, sorry 25, 5 goes here, 2 goes up, 5 1s are 5, 6 and 7, 75 is right, putting 1 0, 15 as it is, 5 7 8 9 10 11 and 12. So that is 225, not 325, it is 225. My mistake, it is 225. Now here also it is 225. Now here 225 is equal to a square plus 144. So a square is equal to क्या होगा, a square is equal to 225 minus 144. सब 225 में से 144 माइनस करो, सो 225 माइनस 144. सो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 10. So 10 minus 4 is what? 10 minus 4 is 6. So 1 minus 1 0. So 61 is good. Again let's check properly. So it is 8, not at 6, it is 8. So 81. Now 81 is whose square? 81 is square of 9. As you know 9 9s are 81. So a is equal to what? 9. Simple. So 9 meter. Why? Because all the terms are in meter in given. So our answer should be also in meter. So here a is 9 meter. So by Pythagoras property we find out the distance between foot of the ladder and wall is 9 meter. Easy. Same way we will do question number 4. Which of the following can be the side of right angle triangle? अब यहाँ पर साइड्स दी हुई है और पता लगाना कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है या नहीं है. 3 साइड दी है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सी हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर इन ऑल 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. सो जो भी यहाँ पर सबसे बड़ी है उसको क्या करेंगे, हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे. 6.5 6 से बड़ा होता है, सो दैट इज हाइपोटेनियस. बाकी की दो जो साइड है वो हमारी साइड होगा, तो उनका एडिशन ऑफ दैट स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 होना चाहिए. तो लेट्स फाइंड आउट करके देखते. फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट होगा, 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो 25 स्क्वायर इज व्हाट, 25 स्क्वायर इज 625. सो हियर 6.25 plus 36. Here if you don't know, just do like this. 5 5s are 25, 2 goes up, 5 2s are 10 plus 2 12, again 0, 2 5s are 10, 1 goes, 2 2s are 4 plus 1 5, 6 2 6. So
sorry 5 to 6, which is 625 is there. So 625 plus 36. So here 36.00 and 6.25. So 6.25 as it is. 6 plus 6, 12 plus 1, so 42.25. 42.25 ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया 42. अभी राइट हैंड साइड पर हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखो, RHS इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर. सो 6.5 का स्क्वायर कितना होगा? 65 मल्टीप्लाई 65. लेट्स फाइंड आउट. 5 5 जा 25, 2 goes up, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 0, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 6 जा 36, 37, 38 and 39. So 3 5, here is 2, 9 plus 3, 9, 10, 11, 12, 2 goes here, so 42.25. So here also 42.25. So लेफ्ट हैंड साइड हमारा हुआ 42.25 एंड राइट हैंड साइड भी हमारा हुआ 42.25. सो यू कैन से दैट LHS is equal to RHS. That means this side is given, which is the side of right angle triangle. So yes, this is the sides of right angle triangle. Same way इसका चेक करो, सिंपल है. 2 2 and 5, so 5 is a greater, so ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज. तो बाकी की दो साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में करो. LHS is equal to what? 2 square plus 2 square. So 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 2 जा 4, here 2 2 जा 4, so 4 plus 4 8. ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. RHS कितना होगा? 5 का स्क्वायर, so 25. So 8 and 25 is not equal. 8 is not equal to 25. So left hand side is not equal to right hand side. So left hand side right hand side यहाँ पर नहीं मैच हो रहा. So this side is not, this given side is not a sides of a right angle triangle. Easy. Same way you have to find out the third one, which is your homework. 2 of them I did here. Same way you have to do the third one. It is very easy. So that's all for this video part. In next video part we will continue with exercise 6.5 question number 5. Till then, thank you.